درود شریف پڑھتے ہیں اللہ لوہا ویلڈنگ سے جڑتا ہے، اینٹیں سیمنٹ سے جڑتی ہیں، کپڑا دھاگے سے جڑتا ہے، اور دل مسکراہٹ سے جڑتا ہے اور معاف کرنے سے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے ایک بڑی عظیم بات، پیشاب سے جو پلید کپڑا ہوتا ہے وہ پیشاب سے دھلتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اگر کوئی پیشاب ہی سے دھو کے اس کو سوکھنے ڈال دے کہ یہ پاک ہو جائے گا، سوکھے گا؟ پاک ہو جائے گا؟ کس سے پاک سے؟ پاک پانی سے۔ اگر کسی نے میرے اوپر پیشاب کر دیا، مجھے گالی دے دی اور میں بھی بدلے میں گالی دے دوں تو کیا ہم پاک ہو جائیں؟ یہ تو میں پیشاب ہی سے اپنے آپ کو پاک کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ ہاں میں نے پاک پانی سے پاک کیا تو پاک ہوگا۔ پاک پانی کیا ہے کہ بھائی میں تو یا اسے معاف کر دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک آدمی گالیاں بکلا اور حضرت عیسیٰ سنتے جاتے ہیں۔ قریب سے آپ جیسے میرے جیسے کو گزرا کہنے لگا بڑے عجیب آدمی، صوفی اتنی شریف ہے کہ وہ گالیاں دیتا جا رہا ہے، آپ چھپ کر کے چلے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے بھائی اس کے برتن میں جو کچھ ہے وہ نکل رہا ہے، اب میں بھی اگر برتن سے یہی کچھ نکالوں جو میرے برتن میں ہے ہی نہیں تو اس میں اور میرے درمیان میں کیا فرق ہے؟ کبھی آپ سوچا کیجئے کہ اچھے اور برے میں کیا فرق ہے؟ فرق تو کرنا ہے نا، کیا فرق ہے؟ کہ جو کچھ اس کے دل کے برتن میں ہے وہ نکال رہا ہے، اور جو کچھ آپ کے دل کے برتن کے اندر ہے آپ وہی نکالیے۔ اگر آپ بھی بدلے میں گالیاں دینا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 1 مہینہ کے لیے اپنی بیویوں سے جدائی کو اختیار فرمایا، یہ قرآن ہے۔ سورہ احزاب 21واں سپارہ آخری آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ کہ ایک بار نبی علیہ السلام کی بیویوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی کہ ہمارا خرچہ بڑھا، ہمارا خرچہ بڑھا، گھر میں کچھ بھی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ایک جگہ خیمہ لگایا، پردہ فرمایا، ایک چادر تنی، اور 1 مہینہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے حجرات سے نکل کر مسجد کے اندر تشریف فرما۔ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں ہوا، چونکہ نبی تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ تو اخلاق کے آسمانوں پہ ہوتا ہے۔ یہ جو علا ہوتا ہے نا قرآن میں کہیں بھی آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اخلاق کے آسمانوں پر ہے۔ تو عربی کا ایک مقولہ ہوتا ہے کہ لوگ سارے نیچے تھے، زید علی السقف، زید جو تھا وہ چھت پہ تھا۔
बाकी सारे नीचे थे, ज़ैद छत पे था। देखने में बिल्कुल मामूली सी बात है, लेकिन जब इंसान इसी की तशरीह में जाता है तो सातों समंदर इस कूजे में बंद होते हैं कि वो बंदा ऊपर खड़ा है, उसके पैर के नीचे छत भी है, उसके पैर के नीचे दरवाजे भी हैं, इसलिए कि वो छत पे थे। उसी के पैर के नीचे घर के अंदर जो कुछ है वो नीचे है, फर्श भी उसके पैर के नीचे है, कारपेट भी उसके पैर के नीचे है, सोफे भी उसके पैर के नीचे है, इसलिए कि वो छत पे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का ये कहना कि भाई इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, तो अखलाक के आसमानों पर तेरा पाँव है, मालूम होता है कि बाकी हर चीज नीचे है, नबी का पाँव ऊपर। एक बुजुर्ग गुजरे औलिया अल्लाह में, नक्शबंदी सिलसिले के हज़रत अबुल हसन फुरकानी रहमतुल्लाह, बहुत बड़े औलिया अल्लाह में से गुजरे बगदाद में। एक दिन एक मुरीद आया घर में मिलने के लिए, तो जैसे ही उसने दरवाजे पे खड़े होकर पूछा कि मेरे पीरो मुर्शिद हैं, तो अंदर से हजरत की बीवी ने 10 गालियां, निकम्मा तेरा पीर है, जमाने का पैड़ा, तू कितना पागल है जो इसको पीर मान के हमारे दरवाजे पे, मुझसे तो पूछ ये पीर है, जो गालियां वो दे सकते। मुरीद वापस हो गया, सोचने लग रही कैसी बीवी है मेरे पीर। तो हजरत को ढूंढते ढूंढते जंगल में जा निकला तो देखा कि हजरत शेर पे सवारी करके आए, शेर की पीठ पे बैठे हैं और शेर लेके आए, और हाथ में सांप को छांटे के तौर पे लिया, शेर को मारते हैं, शेर चलता। ये औलिया अल्लाह की करामतें हैं और हम इन करामतों के कायल हैं। सच्चे पीर की करामत हमारी बख्शिश का जरिया है। हम तो झूठे पीरों को नहीं मानते, ऐसे पीरों की झूठी की खाक हमारी आंख का सुरमा है। तो हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद को देखा तो शेर से नीचे उतरे और शेर खड़ा है। हैरान होकर मुरीद कहने लगा, हजरत घर के अंदर ये मामला है, जंगल के अंदर ये मामला है, कि घर में तो ऐसी शेरनी है जो गालियां देती है और यहाँ ऐसा शेर है जो आपको पीठ पे उठा के कर रहा है। तो जवाब में कही वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। कहा कि इसी की गालियों ने हमें वली बनाया। वो जो गालियां सुन के मैं सब्र करता हूं, अगर मैं भी गाली का जवाब गाली से देता जाऊं, मैं भी गाली का जवाब थप्पड़ से दे दूं, लकड़ से दे दूं, लाठी से दे दूं, कुल्हाड़ी से दे दूं, छुरे से दे दूं, गोली बंदूक से दे दूं, तो मुझे अबुल हसन पहुंच गए। उसकी गालियां सुन के सब्र करता हूं और उस सब्र का नतीजा है कि अस्सब्र मिफ्ताहुल जन्नह, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र जन्नत के दरवाजे की कुंजी है। हजरत ख्वाजा जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली गुजरे हैं। हिंदुस्तान में औलिया अल्लाह में शुमार होता है। कहते हैं कि हसीन इतने थे कि जब सड़क पे निकलते थे तो पर्दा करके निकलते थे। अगर कोई गाड़ी वाला देख लेता था तो एक्सीडेंट करके बैठ जाता था कि अल्लाह ने इतना खूबसूरत बंदा बनाया।
बीवी कम वक्त ऐसी मिली। वो भी यही फरमाया करते थे कि इस सब्र का नतीजा है कि अल्लाह ने मुझे मकाम विलायत पे सरफराज किया। इनके खलीफा थे हजरत गाजी सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। उनकी एक तफसीर है जिसको तफसीर मजहरी कहा जाता है। उर्दू में लाजवाब तफसीर है कुरान पाक की, लाजवाब तफसीर। और कभी कभी हजरत जाने जाना रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि कयामत के दिन अगर अल्लाह ने मुझसे पूछा कि मेरे पास आया है, क्या लेके आया है, तो मैं काजी सनाउल्लाह को आगे कर दूंगा कि अल्लाह अगर ये तुझे कबूल है तो मेरी बख्शिश कर दे, अगर ये तुझे तेरे यहाँ मरदूद है तो बेशक जहां तेरा दिल करता है। जब हजरत जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो हजरत काजी साहब ने अपनी पीरनी को एक कोठी लेके दी, उसमें पीरनी को रखा। तो आखिरी उम्र में आकर वो पीरनी अल्लाह वाली हुई जो कभी तो बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू किया घर के अंदर। ये मैं हजरत कारी साहब के लिए बात कर रहा हूँ। ये जो पानीपत्ती कारियों का सिलसिला है, ये असल में उस औरत की आवाज है, उसकी तर्ज थी। वो जो बच्चों को पढ़ाती थी, कभी गालियां देती थी। जब अल्लाह पाक ने इस लैन पे लगाया तो उसकी आवाज में, जिस आवाज ने उसने बच्चियों को कुरान पढ़ाया, वो आवाज पानीपत में, हिंदुस्तान में फिर ऐसी फैली कि उस आवाज के अल्लाह पाक ने पानीपती कारी पैदा किया। उनको अल्लाह ने ये अजर दिया और घर वाले को अल्लाह ने ये अजर दिया कि अल्लाह पाक ने उनको सब्र की वजह से मकाम विलायत पे। और मैं मकाम नबूवत की बात कर रहा था आपसे। याद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महीने के लिए मस्जिद नबी में तशरीफ ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर नहीं गए। एक महीने के बाद वही आए, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक, कहे मेरा नबी अपनी बीवियों से कह दे, इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयात दुनिया, अगर तुम्हें दुनिया चाहिए, सोने जेवरात कपड़े चाहिए, खर्चे चाहिए, फताअलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, हम फिर लगा देंगे। लेकिन याद रखो, उससे तुम्हें खुदा रसूल नहीं मिलेगा, उससे तुम्हें, हम हैं उम्मत, हम क्या हैं, जोर से कहो क्या है, दुआ करो अल्लाह इस उम्मत पे रखे, आमीन कह दो। यही उम्मत है अल्लाह के यहाँ। ये उम्मत नहीं तो फिर कुछ नहीं। दुआ करो अल्लाह मौत भी इसी उम्मत में दे। हम दुआ करते हैं वो लोग जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी या किसी झूठे नबी को मानने वाले बन गए और उनकी उम्मतों में हो गए, तबाह बर्बाद हो जाओगे। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में रहो, अल्लाह कामयाबी, यही वो उम्मत है, इसके सिवा कोई उम्मत नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन 100 सफ़े होंगी उम्मतों की। कितनी? 100 सफ़े होंगी उम्मतों की। 20 सफ़े बाकी सारे नबियों की उम्मतों की होंगी और 80 सफ़े क़यामत के दिन सिर्फ मेरी उम्मत की। हुजूर ने फरमाया कोई नबी ऐसे भी आएंगे जिनके साथ कोई उम्मती नहीं होगा, कोई ऐसे आएंगे जिनके साथ 2 उम्मती होंगे, किसी के साथ 1 होगा। एक आएगी बड़ी उम्मत होगी, मैं अल्लाह से कहूंगा अल्लाह ये मेरी है, अल्लाह कहेंगे नहीं ये मूसा की है, तेरी उम्मत इससे भी बड़ी है। फरमाया 80 सफ़े मेरी उम्मत की। और कुरान कहता कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए कि तुम्हारा रसूल बेहतरीन रसूल है, तुम्हारी किताब बेहतरीन किताब है, तुम्हारा दीन बेहतरीन